crime rate against women has increased substantially as per the report submitted by the National Crime Records Bureau. ये जो क्राइम रेट है इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 3,70,000 in 2020 to as high as 4,70,000 in 2022. क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं इसको कम करने के लिए? One of the acts that the government has implemented to ensure safety of women at workplace is known as the POSH Act 2013. ये एक्ट क्या है? चलिए इसको जानते हैं थोड़ा डिटेल में. First of all, let's talk about why this act got implemented. This act got implemented in our country because of a very tragic incident that happened with Bhavri Devi, जो एक सोशल वर्कर या मोर पॉपुलरली साथिन थी. वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ काम कर रही थी. अपने काम के दौरान उन्हें पता चला कि 10 महीने की बच्ची उसकी शादी की जा रही है. Bhavri Devi tried to stop that marriage. And what did she get in result? She was gang raped by 5 men. इस इंसिडेंट के बाद भवरी देवी ये केस पुलिस के पास लेके गई एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए. ये केस कोर्ट में गया और जो कि अक्सर ऐसे बहुत सारे केसेस में होता है, जितने भी एक्यूज थे उन्हें बरी कर दिया गया ये कह के कि देयर इज नॉट इनफ एविडेंस टू प्रूव कि इन लोगों ने ही भवरी देवी के साथ रेप किया है. नो बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट बहुत सारी लेडीज ने प्रोटेस्ट किया. कुछ वुमेन एनजीओ साथ में आए to talk about the injustice being done to Bhavri Devi, which led to the formation of Vishakha Guidelines, जो बात करता है about any kind of sexual harassment happening against women. अभी ये गाइडलाइन तो आ चुकी थी, पर केसेस बढ़ते ही जा रहे थे. Why? Because there was no law to ensure कि अगर किसी लड़के के साथ sexual harassment होता है वर्क प्लेस तो ये एक्शन एक कंपनी को लेना ही पड़ेगा. Which led to the demand for a very strict act. एक एक्ट जो अपने आप में इतना स्ट्रिक्ट हो कि ये केसेस सामने ना आए. Which led to the formation of POSH Act on 9 December 2013. चलिए let's understand the full form of the act. The full form of the act is sexual harassment of women at workplace. 3 keywords here being prevention, prohibition and redressal. चलिए एक एक वर्ड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं. So all this act talks about is sexual harassment of women, which means इसमें हम किसी भी तरह का mental harassment, gender bias का केस include नहीं कर सकते. What we are going to focus is only about sexual harassment of women, which means only a woman can file a case under the POSH Act. No man is allowed to file a case under the POSH Act, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी लड़के के साथ sexual harassment होती है at workplace, he will have to more or less rely on the company's policies to ensure he gets justice. So sexual harassment of women at workplace, which means it's very important to establish a working relationship between the man and the woman involved. अगर उन दोनों के बीच में एक working relationship नहीं है, तो ये केस को हम पॉश में कंसिडर नहीं करेंगे. Hence the full form of the act, sexual harassment of women at workplace. आगे जो 3 कीवर्ड्स हैं लेट्स अंडरस्टैंड दैट. द फर्स्ट कीवर्ड इज प्रिवेंशन. इस एक्ट का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये केसेस ही सामने ना आए. हम ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का माहौल बनाएं, इस तरह की कल्चर क्रिएट करें, इस तरह की पॉलिसीज बनाएं कि वहाँ पे एक पॉजिटिव और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट हो और किसी भी तरह की सेक्सुअल हरासमेंट ना हो. द सेकेंड पॉइंट इज प्रोहिबिशन, विच मीन्स एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन should have zero tolerance towards any kind of sexual harassment happening in the organization. And third term is redressal. Redressal का मतलब क्या होता है? To make it right, which means कि जब भी कोई ऐसा केस कंपनी के पास आएगा, they have a responsibility to listen to what the woman or the complainant is saying. At the same time, they have to give an equal opportunity to the man involved or the respondent in the case कि वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करे. दोनों पार्टीज अपनी तरफ से अपने एविडेंस और विटनेस भी प्रेजेंट करेंगे, जिनको ध्यान में रखते हुए एक फाइनल वर्डिक्ट इंटरनल कमिटी सामने लेके आएगी. सो दिस इज अबाउट द कंप्लीट फुल फॉर्म ऑफ द एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस. 3 कीवर्ड्स बीइंग प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल. चलिए अब जान लेते हैं कि ये एक्ट कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है.
ये एक्ट अप्लाई करता है किसी भी कंपनी के ऊपर जहाँ पे एक वर्किंग वुमन है. सो इट कैन बी अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड एनजीओ, इवन टू द इनफॉर्मल सेक्टर्स. सपोज आपके घर में कोई काम करने के लिए मेड आती है, तो जो घर है आपका वो उसके लिए एक वर्किंग प्लेस हो गया और वो भी एक केस फाइल कर सकती है. दैट मीन्स वुमन वर्किंग इन अ हेयर सलून, इन अ जिम, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई लेडी काम कर रही है, ऑल ऑफ देम आर कवर्ड इन द एक्ट. नो व्हाट द एक्ट सेज इज, अगर आपकी कंपनी में 10 या उससे ज्यादा लोग हैं, एंड दिस कैन बी ओनली मेन और ओनली वुमेन, देन यू नीड टू फॉर्म योर ओन इंटरनल कमिटी. पर अगर आपकी कंपनी में 10 से कम लोग हैं, तो लड़की कहाँ पे केस फाइल करेगी? शी विल फाइल अ केस टू द लोकल कंप्लेंट्स कमिटी विच गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड इन एवरी पॉसिबल डिस्ट्रिक्ट. और अगर उसको वो जानने में दिक्कत हो कि ये कहाँ पर है कमेटी, कैसे वहां तक पहुंचना है, शी कैन ऑल्सो अप्रोच द पुलिस, जो उनको गाइड करेगी कि वो उस कमेटी तक जाए और अपना जो कंप्लेंट है उनके सामने रखे. सो दिस इज अ बिट अबाउट व्हाट द पॉश एक्ट इज. इसमें कौन सी कमेटी होती है, रिड्रेसल में कितना टाइम लगता है कंप्लेंट के, तो करीबन 90 दिन, दैट इज 90 डेज इज द मैक्सिमम टाइम जिसके अंदर एक इंटरनल कमेटी को अपना जो है एक वर्डिक्ट मैनेजमेंट या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के सामने प्रेजेंट करना होता है. तो व्हाट आर द कंप्लायंसेस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द पॉश एक्ट? So there are a lot of compliances that an organization will have to adhere to, provided it has 10 or more employees. सबसे पहले आपको एक पॉश पॉलिसी क्रिएट करनी होगी, फिर अपने आईसी मेंबर्स डिक्लेयर करने होंगे, जिसमें एक एक्सटर्नल पैनल मेंबर, यानी कि एक मेंबर जो आपकी कंपनी के बाहर से है, किसी एनजीओ से हो, किसी लीगल बैकग्राउंड से हो, या कोई ऐसा हो जिसको एक्ट की अच्छे से नॉलेज हो, इज रिक्वायर्ड. देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको पॉश की ट्रेनिंग करनी होगी अपने सभी एम्प्लॉयज की. अनदर थिंग दैट इज नीडेड इज आईसी ट्रेनिंग. दैट इज जो आपके इंटरनल कमिटी मेंबर्स हैं, उनको भी ये जानना बहुत जरूरी है कि वो ये केसेस को कैसे हैंडल करें. सो वेरी थरो ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर देम. इन एडिशन क्वार्टरली मीटिंग्स कंडक्ट करना, उसके मिनट्स प्रिपेयर करना, देन इंश्योर करना कि किसी भी लड़की को किसी भी तरह की दुविधा या प्रॉब्लम ना हो. अगर कुछ ऐसा हो रहा है उसके लिए एक समाधान ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द एनुअल रिपोर्ट विच हैज टू बी सबमिट एवरी ईयर बिफोर 31st of Jan. तो अगर आपने ये सब चीजें कर ली हैं, so that means you are a POSH compliant organization. Thank you. I hope you like this video. If you want more details about this, I am sharing our website link. You can go through that and then have more and more idea about the POSH app. Thank you.